So hello my dear students, this is Bhavesh Sharma and I will be teaching you biology for class 10. So here our first video, and in this video we are talking about our first chapter, that is the life process. Okay, so let's start the chapter. So my dear student, when we talk about the life process, it means that we will be talking about those organisms who are having life in them. Okay, as we know that in our planet Earth there are two forms of organism, one is non-living and the other is living. Okay, the organism which is living, it means that they are made up of cell, and that is the reason they can grow, they can develop. And the organisms which do not have cell, such type of organisms are known as non-living organism, and that is the reason they are not able to grow and they are not able to develop. So the question arises over here that the organisms who are capable enough to grow and develop, such type of organisms are known as living organisms, and they are made up of cell. And what are the basic activity or what are the basic process the living organism perform to sustain the life on the earth? So my dear students, let's start the chapter. The first point will be living organism. Okay, this living organism, it may be plant, it can be animal, it can be microorganism, any form of living organism. Okay, what these living organism do? These living organism actually perform basic life activity. This basic life activity are such as, the first is the nutrition, and second is the, yes, right answer, respiration, and my dear student, third will be the transportation of this energy by the process known as transportation. And when these three activities or three basic activities will be taken in a living organism, what will happen? The fourth basic activity, the conversion of unwanted particle or the toxic substance which are being created in a living organism, and that unwanted particle should be discarded out from your body by the process known as the excretion. Okay, that is the excretion. Getting a point or not? So my dear students, these are the basic life activities which are being performed by all form of living organism. Okay, to sustain the life on the earth, and such type of process when a living organism perform, then the chapter name get arise, that is the life process. So here is our small introduction on this chapter. Hope you all have understood. Okay, done. So let's start these four topics one by one. So today we will start the first topic, that is the nutrition. So my dear student, the question arises that what is nutrition? अगर मैं आपके सामने यहां दो वर्ड लिख दूं, एक लिख दूं न्यूट्रिशन और एक वर्ड लिख दूं न्यूट्रिएंट्स, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? आप कहोगे सर न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है. क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients. Got the point? The process of taking nutrients is known as nutrition. Okay, so what are the nutrients? Nutrients are of two forms. It can be organic and it can be इनऑर्गेनिक. मतलब है कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो लिविंग थिंग से भी मिल सकता है और नॉन लिविंग थिंग से भी मिल सकता है. आए बात समझ में? तो जैसे कि आप जानते हो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गए. ओके, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स.
But here are some type of organism which do not take such type of nutrition. अब बात ये होती है कि जितने भी हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सबको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है बेटा। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से उनका काम हो जाता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली वो भी लिविंग थिंग है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं बना पाता, तो उसको अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पाने के लिए वो क्या करता है? वो एक प्रोसेस करता है, कन्वर्जन का प्रोसेस। दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, it is being performed by the process known as photosynthesis, or we can say the light reaction. By the help of light reaction, the plants are able to transform its organic nutrients by the help of inorganic nutrients. Okay? By the help of this inorganic nutrients, plants are able to transform the organic nutrients. So got the point? So let's start the topic step by step. Okay? As we know that this nutrition is very much beneficial for all form of living organism. If a living organism want to sustain its life on the earth, so for that living organism need the nutrients or nutrition. Getting my point or not? So let's talk it in a very proper manner. So here the topic arises, the mode of nutrition. Topic is a mode of nutrition. There are two modes of nutrition. First is the autotrophic nutrition and second is the right answer, heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. So these are the two types of nutrition which is being performed by the living organism. So first we will talk about the autotrophic nutrition and then we will be talking about the heterotrophic nutrition. So first start the autotrophic nutrition. See, there are different form of organism, they perform different modes of nutrition. Okay ना बेटा? तो ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस मत लिख देना, वो प्रोसेस है। ठीक है बेटा? आइए बात करते हैं। जैसा कि नाम लिखा है ऑटो, दो वर्ड है यहाँ पे, हमने इसको डिवाइड कर दिया टू वर्ड्स में। ओके, ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चा? सेल्फ। और ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? प्रिपरेशन। इट मीन्स the self preparation of food or the self preparation of nutrition is known as the autotrophic. It means that the organism who are capable enough to prepare its own food, such type of organisms are termed as the autotrophic nutrition. Okay, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? Yes, right answer, plants. Okay, plants है जिनका हम दूसरा नाम जानते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। इनको हम प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस करते हैं ना, वी गेट मैनी ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट, इट मींस दैट दे प्रोड्यूस। प्लांट का हो या प्रोड्यूसर का हो, एक ही बात है। इनका एक किंगडम का भी नाम है। किंगडम का क्या नाम है इनका? प्लांटेई किंगडम होता है। ओके, तो प्लांटेई का या प्रोड्यूसर का या प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चा लोग? यस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition of plants.
आई बात समझ में? आइए बात करते हैं कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो बेटा बात आती है इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब प्लांट कह रहा है कि प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ओके ना? कैसे? देखो भाई, प्लांट हमने पहले तो हम लिख देते हैं एक वर्ड यहां पे अपना, हम प्लांट, ठीक है? प्लांट होते हैं ग्रीन, रेयरली तो दे आर ग्रीन ओनली, ओके ना? होते हैं क्या ये? ओके, ग्रीन। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट? ग्रीन ड्यू टू chlorophyll. What is chlorophyll? It is just an color pigment. By the help of this, plant color is green. Okay, this is the color pigment chlorophyll. भाई इस बात समझ में आ गई? अब प्लांट का हर एक हिस्सा क्या होता है? ग्रीन होता है। तो जो फूड की प्रिपरेशन होती है क्या प्लांट के हर एक पार्ट में होती है? नहीं। अब प्लांट में जो आप ग्रीन पार्ट देखते हो, ग्रीन पार्ट सब कुछ है, लेकिन जो क्लोरोफिल हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड की प्लांट में, तो कहां पे होती है बच्चा? लीफ में होती है। जो फूड का प्रिपरेशन होता है प्लांट में वो कहां पे होता है? लीफ में होता है। आइए बात करते हैं। जैसे मान लो कि ये है आपका प्लांट लीफ। क्या है बेटा? प्लांट लीफ। जैसा स्पेस बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। भाई प्लांट लीफ है और लीफ के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? मीजोफिल सेल्स होती हैं। चलिए अब मीजोफिल सेल के काम के बारे में जान लेते हैं। अब बेटा लीफ देखो, ठीक है? ठीक, हाँ, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बात करेंगे, परेशान ना होइएगा आप लोग, ठीक है? लीफ है। अपर पार्ट, अब मान लो उसके नीचे क्या है? लोअर पार्ट। ओके, हम यहां पे लिख दे रहे धीरे से, upper part of the leaf and lower part of the leaf, okay? ठीक। अब यहां पे लीव्स में क्या होता है? इन द लीव्स देयर आर, छोटे छोटे छेद दिखते होंगे पत्तियों को, ध्यान से कभी देखना तो आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे? पोर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे बेटा? इन्हें हम कहते हैं पोर्स, जिसका दूसरा नाम भी होता है स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको बेटा? इनको स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमेटा एक्चुअली जानते हो क्या करता है? ये गैसियस का इन और आउट करता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो लीफ के अंदर जाते हैं उनका भी इन और आउट कौन करता है? स्टोमेटा करता है। मान लो कि ये आपका है स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा। ये खुलता है और बंद होता है, मतलब इट गेट ओपन एंड इट गेट क्लोज्ड बाय द हेल्प ऑफ अ बीन शेप्ड सेल, बाय द हेल्प ऑफ a bean shaped cell known as the guard cell। ये जो बीच में दिख रहा है सेंटर में, ये क्या है आपका? स्टोमेटा है। और ये जो बीन शेप दिख रहा है वो क्या है? ये आपका है गार्ड सेल। ये खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। इसी स्टोमेटा के अंदर जानते हो क्या जाता है बेटा? चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, सनलाइट हो गया, और क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? जाएगा, जाएगा। और इसी स्टोमेटा से यही ऑक्सीजन रिलीज होगा बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट के अंदर चला जाता है ना, वो लॉस हो जाता है, वो भी लॉस हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, तो गेट योर पॉइंट और नॉट? तो इसी स्टोमेटा की हेल्प से सारा चीज हो रहा है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप वाटर देख रहे हो, जो आप सनलाइट देख रहे हो, ये आप जो CO2 देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, और हम यहाँ पे सनलाइट, मतलब सनलाइट की हेल्प से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। इनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स कहते हैं। रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, जिसकी हेल्प से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है।
आई बात समझ में? टॉपिक क्लियर है? समझ में आ गया? और मिटाते हैं फटाक से उसको। अब बात करते हैं भाई कैसे प्लांट्स के अंदर फूड का प्रिपरेशन हो जाता है। कैसे प्लांट्स के अंदर फूड का प्रिपरेशन हो जाता है, आइए करके देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन सिंपल इक्वेशन। अब जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक होता है LHS, एक होता है आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम रिएक्टेंट लेते हैं CO2, प्लांट्स को चाहिए होता है CO2, और क्या लेगा? वाटर, H2O, ठीक है। दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ रिएक्टेंट, ओके ना। व्हाट हैपेंस, अब यहां पे कैटलिस्ट रखेंगे जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारा हो पाएगा, और जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है दैट इज विल बी द सनलाइट। ये सनलाइट हमारा आ गया। ये प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक प्लांट ग्रीन नहीं होगा, क्लोरोफिल, राइट? यस, क्लोरोफिल। इन दोनों की प्रेजेंस में ये जो हमारा रिएक्टेंट है इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, यस, C6H12O6, that is the glucose. Another loss of water by the process transpiration, as I have told you, H2O का रिलीज होगा, मतलब प्लांट के अंदर एनर्जी बन गया, एक्सेस वाटर निकल गया, और हमको बदले में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अब ध्यान सुनिएगा, जो बातें ध्यान देने वाली है। ये जो CO2 H2O जो आप लोग देख रहे हो, मैंने कहा था कि प्लांट के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म की हेल्प से ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बनता है। ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक है न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है ये? आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक। इसके हेल्प से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपका बन जा रहा है। एंड सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज, माय डियर, photosynthesis. Photo means light and synthesis means reaction, means light reaction. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम होता है लाइट। Topic clear? This is the light reaction and this is the also known as the photosynthesis. Topic clear? Good. So let's start something else. Let's tell you where this process gets carried out. आइए बात समझते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नंबर में पूछ लेता है 10th में ही कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आखिर कहां होती है? तो आप बोलोगे सर क्लोरोफिल में होती है, बोल सकते हैं ना, लेकिन गलत है बेटा, समझिए ध्यान से। अब हम मान लो कि लाइट आ रही है, लाइट, ये है लाइट, लाइट निकल रही है, पत्तियों के अंदर चली गई, लीव्स में, ये है क्लोरोफिल। मान लो क्या है ये आपका क्लोरोफिल है। ये पता डायरेक्टली क्लोरोफिल से अटैक नहीं हो पाता है। क्लोरोफिल के एक्चुअली ऊपर एक होती है लेयर, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। क्लोरोफिल के ऊपर होती है एक लेयर जिसको हम लोग कहते क्या हैं? इसी लेयर को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है बेटा, तो लाइट पहले किससे टकराया है? क्लोरोफिल से, क्लोरोप्लास्ट से? यस, क्लोरोप्लास्ट से टकराया। क्वेश्चन अगर आ गया एक नंबर में, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या कहेंगे? सर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट बट नॉट द क्लोरोफिल। ओके, लीव्स में होते हैं, क्योंकि लीव्स में बेटा मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसी के अंदर ये पाए जाते हैं, चाहे लीफ का अपर पोर्शन हो चाहे लोअर पोर्शन, दोनों जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये पहला रॉ मटेरियल था लाइट, इंपॉर्टेंट है। सब कुछ रॉ मटेरियल्स आ गया, आपके पास लाइट नहीं है, इल्ले कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल वाटर। आइए समझते हैं बेटा, वाटर नहीं रहेगा ना रॉ मटेरियल के एलएचएस में,
आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं इस चीज को। हमने कहा भाई आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब हम आपको एक सिंपल सी इक्वेशन में अभी इसी चीज को करके दिखाएंगे। देखो भाई, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं बच्चा? यस, फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, आइए जानते हैं उसको। अब जब ये लाइट आती है, लाइट रेज, मान लो ये लाइट है, ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फोटोलिसिस की हेल्प से क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है बच्चा? वाटर का होता है ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन जब होगा ना, तो दिस विल बी सेपरेटेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जैसे पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेपरेट हो जाते हैं। आई बात समझ में? यस यस यस, टॉपिक क्लियर है। कुछ मिस्टेक लग रही है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होते हैं ना बाबू। ओके, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से आपको क्या मिल जाता है? यस, इसी की हेल्प से आपको मिल जाता है ऑक्सीजन। क्या मिल जाता है आपको? आपको मिल जाता है ऑक्सीजन, जो आपको चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? टॉपिक क्लियर? फोटोलिसिस समझ में आ गया? ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होगा तो ये तो बन ही गया। एक चीज और बता देता हूं आपको, प्लांट के अंदर दो फेजेस होते हैं। क्या होता है बेटा प्लांट के अंदर? दो फेजेस होते हैं, एक डार्क फेज होता है और एक लाइट फेज होता है। पढ़ा होगा आपने, बुक में भी है, एनसीईआरटी में है, ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक मत पढ़िए, ठीक है। टू फेजेस होते हैं बच्चा। कौन कौन से फेजेस? एक होता है लाइट फेज, एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज। सो दीज आर द टू फेजेस which are being adapted in the plants. डार्क फेज के अंदर आता है स्टोमा और इनके अंदर आता है ग्रेना। तो स्टोमा और ग्रेना आता है, ठीक है। स्टोमा की बात करें तो इट इज लिक्विड हेलन, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये क्या होते हैं? ग्रीन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब स्टोमा इज अ लाइट फेज में आ रहा है और हमारा ग्रेना क्या हो रहा है? अब भैया ध्यान सुनिएगा, गलत हो गया, समझिए ध्यान से। कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, आई सही कर देते उसको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइट फेज। लाइट फेज के अंदर एक्चुअली में आता है ग्रेना। क्या आता है? ग्रेना आता है। और डार्क फेज में एक्चुअली आता है हमारा स्टोमा। हो गया, समझ आपको आया? ग्रेना में होते हैं कलर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? लिक्विड होता है, ठीक है। इनके अंदर लिक्विड होता है। अब जानते बच्चा, जो भी एनर्जी बनती है, क्या बनती है? जो भी एनर्जी, मतलब कि प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी बनेगी? NADPH बनेगा और ATP बनेगा, ठीक है। जो NADPH बनेगा और जो ATP का जो प्रोडक्शन होगा वो किस पार्ट में जाएगा? लाइट फेज के अंदर, मतलब ग्रेना में जाएगा। और इनके अंदर एक्चुअली क्या होता है? इनके अंदर प्रिपरेशन होती है स्टार्च की। किसके अंदर होती है बेटा?
स्टार्च। स्टार्च के अंत से क्या बन जाएगा, एक प्रोसेस होगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये दिस स्टार्च विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। किस में चले जाएंगे बेटा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस स्टार्च विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इन द स्टोमा पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बात समझ में जहां तक है आप लोग को आ गई है। आज की वीडियो में हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात की है। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉप्स इन दिस वीडियो। होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, और जो समझ में ना आए कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।